ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯਰ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ 87। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਬਾय ਰੈਮੰਡ ਮਰਫੀ 4th ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 97 97 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ 96 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ING ਐਂਡ ED ਕਲੌਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦ ਵੂਮਨ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਟॉम, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਦੂਸਰੀ, ਦ ਬॉय ਇੰਜਰਡ ਇਨ ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ING ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਟੇਕਿੰਗ ਟੂ ਟॉम ਦੇਖੋ ਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ING, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ED ਇੰਜਰਡ ਇਨ ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ING ਕਲੌਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ED ਕਲੌਜ਼। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ING ਕਲੌਜ਼ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ED ਕਲੌਜ਼ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ING ਕਲੌਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ING ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦ ਵੂਮਨ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਟॉम, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਟॉम ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦ ਬॉय ਇੰਜਰਡ ਇਨ ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕਲੌਜ਼ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ? ING ਕਲੌਜ਼ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ED ਕਲੌਜ਼ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅ ਕਲੌਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਕਲੌਜ਼ਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ING ਔਰ ED। ਕੁਝ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ING ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ED ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦ ਵੂਮਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦ ਵੂਮਨ। ਅੱਗੇ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਟॉम, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟॉम ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਟॉम। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦ ਬॉय ਇੰਜਰਡ ਇਨ ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਟੇਕਨ ਟੂ ਹਸਪੀਟਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਦ ਬॉय ਵਾਜ਼ ਟੇਕਨ ਟੂ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਜਰਡ ਇਨ ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ED ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਲਸ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ING ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ED ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ। ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਐਨ ING ਕਲੋਜ਼। ਅਸੀਂ ING ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ? ਟੂ ਸੇ ਵਟ ਹੈਪਨਸ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ, ਨੋਟ ਜਸਟ ਐਟ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ING ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ING
फॉर्म है जिहड़ी मतलब ING क्लॉज है जिहड़ा वो यूज़ करांगे हमेशा लिए। किस तरह अपनी इस जिहड़ी आप एक्सरसाइज करांगे इस दे विच भी एक सेंटेंस आएगा उदों मैं तुहानूं समझाऊंगा। फिलहाल सिर्फ इन्नी गल याद रखनी है। बट जिहड़ा आपां इसदा फस्ट पार्ट करन जा रहे हाँ इस दे विच बिल्कुल आसान है। इस दे विच इन्हां ने सिर्फ और सिर्फ आपां नूं ING क्लॉज ही यूज़ करना है। इन्हां ने कहा मेक वन सेंटेंस फ्रॉम टू, दो सेंटेंस ने सारे जिन्ने भी उपर लिखे ने उन्होंने दो सेंटेंस में अपने की करना है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन ING क्लॉज। ING क्लॉज का आप यूज़ करके दो सेंटेंस तो अपने एक सेंटेंस है जिहड़ा वो बनाना है और सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने ING क्लॉज का ही यूज़ करना है। सो ये तो बिल्कुल सिंपल है ING क्लॉज यूज़ करांगे। हुण देखो करना किस तरह है, एक दो सेंटेंस जो करांगे समझ जाओगे तुसीं, उस तो अगले तुसीं खुद भी बना सकते हो वीडियो नूं पॉज करके ट्राई करियो। देखो फस्ट दे विच की कह रहा है अ बैल वॉज रिंगिंग, एक तो ये अपना हो गया सेंटेंस अ बैल वॉज रिंगिंग जिहड़ी बैल है वो बज रही सी। और दूसरा आई वॉज वोकन अप बाय इट, मैनू इस द्वारा जगा दिता गया, मतलब जिहड़ी बैल बज रही सी उस द्वारा कहंदे मैनू जगा दिता गया। हुण इन्हां ने आपां नूं स्टार्ट करके दिता है, मतलब मेन सेंटेंस तो इन्होंने स्टार्ट करके दिता अपने क्लाउज है जिहड़ा ऐड करना है सिर्फ और सिर्फ ING फॉर्म का यूज़ करके। देखो इन्होंने अपन की कहा आई वॉज वोकन अप, मतलब ये लिखता आई वॉज वोकन अप बाय। हुण बाय तो बाद इत्थे की है इट किस लिए यूज़ किया गया मतलब कि वैल, क्योंकि ये कह रहा है वैल वॉज रिंगिंग आई वॉज वोकन अप बाय इट मतलब कि बैल द्वारा। हुण आपां नूं इन्होंने मेन लिखता आई वॉज वोकन अप बाय। हुण बाय किस द्वारा यह जगाया गया, पहले तो आपको लिखना है बाय बैल द्वारा जगाया गया ना, बाय अ बैल। उस तो बाद आपने ING फॉर्म यूज़ करना है। हैल्पिंग वर्ब अपने दोबारा यूज़ नहीं करना, एक बार इन्होंने मेन सेंटेंस के विच ही जो दिता है वही यूज़ होगा। दोबारा जो आप क्लॉज करांगे ING यूज़ उदों अपने हैल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी, सिर्फ आप ING जिहड़ा फॉर्म है वो यूज़ करनी है। तो की आ जाएगा अप बाय अ बैल, उस तो बाद रिंगिंग, सिर्फ इन्ना लिखांगे आप रिंगिंग, ये अपना कंप्लीट हो गया। अगला देखो तो इस दे विच देखो क्लॉज हो गया आई वॉज वोकन अप बाय अ बैल रिंगिंग। अगला देखो सैकेंड अ मैन वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन, कहना जिहड़ा आदमी है मेरे नाल ही प्लेन दे विच मेरे नाल बैठा है। एक तो देखो ये गल होगी कि मेरे नाल एक आदमी है जिहड़ा प्लेन दे विच वो बैठा है। और दूसरा आई डिडेंट टॉक मच टू हिम, मैं उस दे नाल ज़्यादा गलबात नहीं की। दो सेंटेंस हो गए, मेरे नाल एक आदमी बैठा है और मैं उसके नाल ज़्यादा गलबात नहीं की। इन्होंने अपन स्टार्ट करके दिता है आई डिडेंट टॉक मच टू द, आई डिडेंट टॉक मच टू द। हुण टू द मतलब किस नाल गल नहीं की, इन्होंने अपन सिर्फ पिछला सेंटेंस दिता कि मैं ज़्यादा गलबात नहीं की। हुण जिहड़ा मूरला सेंटेंस है जिहड़ा आदमी मेरे नाल बैठा सी कि उस नाल वो आपां ने ING क्लॉज लिखना है। सब तो पहलां तां देखो आई डिडेंट टॉक मच टू द किस नाल गलबात नहीं की, आपां पहलां पढ़ के हटिया मैन, ये आ गया मैन, तो यह बन गया आई डिडेंट टॉक मच टू द मैन। उस तो बाद आपां ने ING जिहड़ी फॉर्म है उस नाल क्लॉज है ING क्लॉज ऐड करना है। फॉर्म तो वर्ब की फॉर्म तो ING तो स्टार्ट करना है, तो कित्थों सिटिंग बैठन की गल हो रही है, वॉज नहीं लगावांगे सिटिंग, सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन, बाकी सारा आ जाएगा सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। देखो ये अपना सेंटेंस है जिहड़ा कंप्लीट हो गया। अगला देखो थर्ड अ टैक्सी वॉज टेकिंग अस टू द एयरपोर्ट, जिहड़ी टैक्सी है वो सानू एयरपोर्ट वाल मतलब लैके जा रही सी। इट ब्रोक डाउन, वो खराब हो गई। दो गल्लां ने, टैक्सी सानू एयरपोर्ट ते लैके जा रही सी और दूसरा इट ब्रोक डाउन कि वो टैक्सी है जिहड़ी वो खराब हो गई। हुण इन्हां ने आपां नूं की सेंटेंस दिता है, इन्हां ने दिता है द ब्रोक डाउन। देखो द ब्रोक डाउन, जिहड़ी ब्रोक डाउन है एक तो ऑब्वियस है खराब की हुई सी टैक्सी, तो द दे नाल टैक्सी तो आएगी ही आएगी। तो यह सेंटेंस है जिहड़ा इत्थे ये पूरा कंप्लीट हो जाता है द टैक्सी ब्रोक डाउन। हुण आपां ने विचाले एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्लॉज लिखना है ING क्लॉज, तो क्लॉज की होगा अ टैक्सी ब्रोक डाउन इन्होंने लिखता। हुण उस टैक्सी बारे आपां ने एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है कि टैक्सी वो किहड़ी सी जिहड़ी सानू नदी ते एयरपोर्ट ते सॉरी जिहड़ी सानू एयरपोर्ट ते लैके जा रही सी। तो ING फॉर्म नाल टेकिंग अस, तो आ जाएगा टेकिंग अस टू द
एयरपोर्ट। तो देखो ये बन गया द टैक्सी टेकिंग अस टू द एयरपोर्ट ब्रोक डाउन। ये जिहड़ा टेकिंग अस टू द एयरपोर्ट ये अपना ING क्लॉज आ गया। अगला देखो फोर्थ, देयर इज अ पाथ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। गली दे एंड ते एक रस्ता है, एक ये सेंटेंस हो गया। अगला द पाथ जिहड़ा रस्ता है लीड्स टू द रिवर, ये रस्ता नदी नूं जांदा है। दो सेंटेंस हो गए। हुण इन्हां ने आपां नूं किहड़ा सेंटेंस दिता अगे, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट देयर इज अ, कहना गली दे एंड ते देयर इज अ की है। हुण आपां नूं भी पता है गली दे एंड ते की है, आपां नूं इन्हां ने दस्सिआ है पाथ रस्ता। तो इत्थे वो तो आपां लिखी देवांगे देयर इज अ पाथ। तो एक गल कंप्लीट हो गई कि गली दे एंड ते एक रस्ता है। उस तो बाद ING क्लॉज आप यूज करांगे उस बारे कि वो रस्ता किहड़ा है, वो रस्ते बारे कि वो रस्ता की करदा है, वो रस्ता आपां नूं नदी तक लैके जांदा है। तां ये बच गया लीड्स टू द रिवर। तां लीड नूं लीडिंग ING यूज करना है, लीडिंग टू द रिवर। हुण जिहड़ा ये सेंटेंस आपां बनाया फोर्थ ये वाला एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द स्ट्रीट, ये इस कैटेगरी दे विच आउंदा है। जिहड़ी आपां मैं तुहानूं नोट करवाई सी ऑल द टाइम, जिहड़ी कोई चीज़ ऑल द टाइम हुंदी है हमेशा लई, उत्थे भी आपां ING क्लॉज दा जिहड़ा वो यूज़ करते हैं। ऑल द टाइम किस तरह है, क्योंकि रस्ता है जिहड़ा रस्ता आपां नूं नदी तक लैके जांदा वो रस्ता ऑल द टाइम ही है। इस तरह नहीं है कि कदे बंद हो गया घंटे बाद खुल गया, बंद हो गया खुल गया। हाँ कई बार हो सकता है कोई मिसफॉर्चून हो जाए, कोई रास्ता बंद हो भी सकता, बट उसनूं दोबारा खोल दिता जाता। जिस तरह कि आपां नूं पता ही है जो रास्ता हैगा तो हमेशा लिए हुंदा ऑल द टाइम, इसे लिए इत्थे आपां ING क्लॉज है जिहड़ा वो यूज़ किया। पंजवां देखो, अ फैक्ट्री हैज़ जस्ट ओपनड इन द टाउन। जिहड़ी एक फैक्ट्री है टाउन दे विच, फैक्ट्री एक हुणे हुणे मतलब ओपन हुई है, खुली है, एक तो यह गल हो गई। दूसरा इट इंप्लॉयज़ 500 पीपल, इस दे विच 500 लोग ने जिहड़े वो काम करते हैं। दो गल्लां हो गईयां। इन्हां ने आपां नूं की दित्ता है अ, उस तो बाद ए डैश आ गई, हैज़ जस्ट ओपनड इन द टाउन। सब तो पहली गल तो यह देखो हैड जस्ट ओपनड इन द टाउन, टाउन दे विच हुणे हुणे की ओपन होया सी अ फैक्ट्री, तो फैक्ट्री तो आएगी ही आएगा। हुण ये चीज़ देखो कंप्लीट हो गई, अ फैक्ट्री हैज़ जस्ट ओपनड इन द टाउन, ये मूरली अ फैक्ट्री हैज़ जस्ट ओपनड इन द टाउन। हुण इस बारे इस फैक्ट्री बारे एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन की रह गई कि इस दे अंदर 500 जिहड़े लोग ने काम करते हैं, तो वो क्लॉज आपां लिखांगे और उसनूं ING क्लॉज बनावांगे। इंप्लॉय इंप्लॉयज़, तो इत्थे आपां इंप्लॉइंग 500 पीपल, ये हुण इत्थे कंप्लीट हो गया। अगला देखो छेवां, द कंपनी सेंट मी अ ब्रोचर। ब्रोचर हुंदा एक समॉल बुक या फिर एक मैगजीन वगैरह दस्तावेज जो आपां नूं किसी कंपनी द्वारा भेजे जाते हैं, कोई इंस्ट्रक्शनस हुंदियां ने जिस दे विच अपने लिए, तो उसनूं बोलते हैं ब्रोचर। अ कंपनी सेंट मी अ ब्रोचर, एक तो यह हो गया कंपनी ने मैनूं भेजिया, ब्रोचर भेजिया। और अगला की है इट कंटेन्ड द इन्फॉर्मेशन आई नीडड, कहना जिसकी मैनूं जरूरत सी उस दे विच ये इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी ओह हैगी सी इस ब्रोचर दे विच। तां आपां नूं इन्हां ने स्टार्ट की कीता, द कंपनी सेंट मी, देखो कंपनी सेंट मी, कंपनी ने मैनूं भेजिया, की भेजिया सब तो पहला वो लिखांगे द कंपनी सेंट मी, की भेजिया सी अ ब्रोचर, अ ब्रोचर। हुण देखो इत्थे फस्ट वाला सेंटेंस है जिहड़ा कंप्लीट करता इन्हां ने, अ कंपनी सेंट मी अ ब्रोचर। रह की गया इस बारे एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन कि उस दे विच जिहड़ी इन्फॉर्मेशन की मैनूं जरूरत सी वो इन्फॉर्मेशन इस ब्रोचर दे विच हैगी सी, तां इसनूं ये क्लॉज नूं आपां ING क्लॉज बना के लिखांगे। तां कंटेन्ड इसनूं कंटेनिंग, क्योंकि इन्फॉर्मेशनिंग तो आपां कर नहीं सकते है ना, तो ING फॉर्म कंटेन दे नाल आएगी। तो इत्थे आऊगा कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन आई नीडड। तो इत्थे ये देखो ये अपना कंप्लीट हो गया। आई होप कि तुसीं जिहड़ा फस्ट पार्ट हो चंगी तरह समझे होवोगे कि किस तरह करना है। ING क्लॉज ही यूज़ करना है, बट ये गल याद रखनी है ING क्लॉज कदों यूज़ करना है, एक तो जिथे कोई क्रिया चल रही है कंटिन्यू, वो आपां नूं सेंटेंस की सेंस तो ही पता चल जाएगा। और दूसरा ऑल द टाइम, जेकर कोई चीज़ ऑल द टाइम हैपन्स होंदी है ना, घटना कोई ऑल द टाइम चलती है, तो उत्थे भी आपां ING फॉर्म है जिहड़ी उसका यूज़ करांगे, मतलब कि ING क्लॉज है जिहड़ी उसका यूज़ करांगे। सो ये सी अपना इस यूनिट का अपना पार्ट फस्ट। एंड हुण अगे देखो आपां इसका सैकेंड पार्ट है जिहड़ा वो करदे हां,
ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ 97.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਟੂ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ, ਬੈਗਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਓ। ਈਚ ਟਾਈਮ ਮੇਕ ਐਨ ਈਡੀ ਕਲੌਜ਼, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਕਲੌਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਨਜੀ ਕਲੌਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲੌਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਈਡੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਈਡੀ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਈਡੀ ਕਲੌਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲਸ ਆਰ ਇਰੈਗੂਲਰ ਐਂਡ ਡੂ ਨਾਟ ਐਂਡ ਈਡੀ ਇਨ ਈਡੀ, ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੇ ਪਲੇਡ ਪਲੇਡ ਈਡੀ ਤੋਂ ਐਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਕ ਮੇਡ ਮੇਡ, ਸਟੀਲ ਸਟੋਲ ਸਟੋਲਨ, ਰਾਈਟ ਰੋਟ ਰਿਟਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ, ਸਟੋਲਨ ਮੇਡ ਰਿਟਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੀਲ ਸਟੀਲਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਕ ਮੇਕਡ ਨਹੀਂ, ਮੇਕ ਮੇਡ ਮੇਡ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਮਝੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੇਮ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅ ਬॉय ਵਾਜ਼ ਇੰਜਰਡ ਇਨ ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟੇਕਨ ਟੂ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਦ ਬॉय was taken to the hospital, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੜਕਾ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਈਡੀ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਈਡੀ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਫੇਰ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੇਕਰ ਇੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਆਈਐਨਜੀ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਈਡੀ ਕਲੌਜ਼ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੜਕਾ, ਦ ਬॉय ਵਾਜ਼ ਟੇਕਨ ਟੂ ਦ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਦ ਬॉय ਇੰਜਰਡ ਇਨ ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇੰਜਰਡ ਇਨ ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਅ ਗੇਟ ਵਾਜ਼ ਡੈਮੇਜਡ ਇਨ ਦ ਸਟਰਮ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਓ ਬੀਨ ਰਿਪੇਅਰਡ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਦ ਗੇਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਓ ਬੀਨ ਰਿਪੇਅਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਗੇਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਦ ਗੇਟ ਡੈਮੇਜਡ ਇਨ ਦ ਸਟੋਰਮ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵਰ ਮੇਡ ਐਟ ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਵਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਵਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵਰ ਮੇਡ ਐਟ ਦ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਈਡੀ ਕਲੌਜ਼ ਮੇਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਮੇਡ ਹੀ ਆਏਗਾ ਮੇਕ ਦੀ। ਮੇਡ ਐਟ ਦ meeting, most of the suggestions made at the meeting were not very practical। चौथा, some paintings were stolen from the museum, कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ पेंटिंग्स ਦੀਆਂ ਉਹ म्यूजियम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
दे हैव नॉट बीन फाउंड yet ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ हैव not been found yet मतलब हाले तक नहीं लभियां गईयां। की नहीं लभियां गईयां? द पेंटिंग्स हैव नॉट बीन फाउंड yet हाले तक पेंटिंग्स नहीं लभियां गईयां। किहड़ियां पेंटिंग्स? जिहड़ियां म्यूजियम दे विचों चोरी हो गईयां सीगा। स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। बस थर्ड फॉर्म तो तुसीं नहीं चकना है। देखो अगला लास्ट, अ मैन वॉज अरेस्टड बाय द पुलिस, एक आदमी पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया। वट इज हिज नेम, उसका नाम की है। देखो वट इज द नेम ऑफ, किस दा नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं? मैन। वट इज द नेम ऑफ द मैन? हुण किहड़े आदमी दा? जिहड़ा आदमी पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया सी। अरेस्टड बाय द पुलिस, अरेस्टड बाय द पुलिस। तो इस तरह सारे आपां ये ईडी क्लॉज दे नाल बनावांगे। आई होप कि ये भी तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होवेगा। फस्ट वाला जिहड़ा पार्ट सी ING क्लॉज दे नाल बनाया है और सैकेंड वाला ईडी क्लॉज दे नाल बनाया है। और क्यों बनया वो ING क्लॉज दे नाल अते ये ईडी क्लॉज दे नाल, ये तुहानूं सेंटेंस नूं पढ़ के आसानी नाल पता लग जाएगा। फिर भी जेकर कोई डाउट रहिंदी है एक बार दोबारा सुनो, तुहानूं सारियां गल्लां ने जिहड़ियां क्लीयर होणियां शुरू हो जाणगीआं। सो इस अपनी इस यूनिट का पार्ट सैकेंड। एंड हुण देखो अपनी इस यूनिट का आपां लास्ट पार्ट है जिहड़ा वो करन जा रहे हाँ, फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट नहीं करांगे आपां। थर्ड पार्ट तुसीं खुद करके देख सकते हो, बिल्कुल आसान है। उन्होंने ब्लैंक्स ने जिहड़ियां वो दित्तियां ने, ब्लैंक्स दे विच उन्होंने उपर जिहड़ियां फॉर्म्स ने वो दिते ने, उन्हां फॉर्म्स नूं ब्लैंक्स दे विच तुसीं ने पुट करना है अकॉर्डिंग टू सेंस। और उस तो बाद पूरे सेंटेंस की सेंस देखनी है। जेकर कोई एक्शन तुहानूं लगदा कि पास्ट दे विच हो चुकिया, पास्ट दे विच होया है, मतलब हुण नहीं हो रहा कंटिन्यू, फिर तुसीं पास्ट दे विच लिख दो फॉर्म। जेकर कंटिन्यू चल रहा है प्रेजेंट, तुहानूं लगदा कि जिस समय की गल हो रही है तो कंटिन्यू हो सकता है, तो उत्थे तुसीं ING दे नाल लिख सकते हो। बिल्कुल आसान है। वैसे जेकर तुसीं थर्ड पार्ट छड्डना भी चाहो तो तुसीं छड्ड सकते हो। जेकर आपां एग्जाम्स की तैयारी दे लई देखीए, फस्ट सैकेंड अते फोर्थ पार्ट है जिहड़ा वो आपां करांगे। देखो फोर्थ पार्ट दे विच हुण की करना है, बिल्कुल ईजी है भी। देखो इन्होंने की कहा, यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट दे विच जिहड़े वर्ड्स ने, देखो एक सेंटेंस है पहला इन्होंने लिखिया है और उस तो बाद ये आपां नूं ब्रैकेट दे विच वर्ड्स दिते ने, हर एक दे विच इस तरह दिता है। वो जिहड़े वर्ड्स ने कहना यूज करो टू मेक सेंटेंसेस, सेंटेंस नूं बनाउण वास्ते। यूजिंग देयर इज, देयर वॉज, देयर आर, देयर वर एक्सैट्रा, मतलब देयर तो ही स्टार्ट करना है। और देयर दे नाल इज एम आर वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जैक्ट। जेकर पास्ट की गल हो रही है, जिहड़े सब्जैक्ट है प्लूरल है तो आप देयर वर लिखांगे। जेकर प्रेजेंट की गल हो रही है तो आप देयर इज, देयर आर, तो इस तरह आप लिखांगे। देखो बिल्कुल ही आसान है। करना की है, तुसी जिहड़ा सेंटेंस इन्होंने फस्ट वाला दिता है उसनूं बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है। उस तो बाद देखना है कि जिहड़ा सेंटेंस है ये कंटिन्यू हो सकता है या फिर बीते समय दे विच जिस क्रिया की गल हो रही है वो हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी, कंटिन्यू नहीं हो रही। देखो फस्ट दे विच बिल्कुल पता चलेगा। फस्ट दे विच की कह रहा है, दैट हाउस इज एम्प्टी। जिहड़ा वो घर है वो की है, खाली है। प्रेजेंट दे विच है पहला तो वो घर खाली है। नोबडी लिव इन इट, कोई भी इस दे विच नहीं रह रहा। देखो आपां जेकर किसी घर के सामने पहुँचते हैं, आपां उस घर नूं खाली देख रहे हैं तो आप ये गल कह सकते हैं कि इस घर दे विच कोई नहीं रह रहा है, मतलब इस वक्त भी कोई रह नहीं रहा, मतलब कंटिन्यू उसनूं बना सकते हैं। तो इसलिए देयर तो स्टार्ट ही करना है, देयर दे नाल इज क्योंकि प्रेजेंट है तो आ गया देयर इज नोबडी, क्योंकि नोबडी है तो करके इज लगाया। जेकर इत्थे प्लूरल हुंदा फिर आर भी लगा सकते सी। तो देयर इज, देयर दे नाल इज लग गया, उस तो बाद नोबडी, देयर इज नोबडी, उस तो बाद आप कंटिन्यू बना सकते हैं लिविंग इन इट। इसलिए आपने इसनूं इस तरह बनाया। अगला देखो, द एक्सीडेंट वॉज नॉट सीरीयस। जिहड़ा एक्सीडेंट है वो ज़्यादा सीरीयस नहीं सी। नोबडी इंजर। हुण इत्थे गल जिस टाइम की आपां गल कर रहे हाँ, आपां गल कर रहे हाँ कि कोई भी इंजर नहीं होया। हुण जिहड़े एक्सीडेंट की गल हो रही है, एक्सीडेंट हो चुकिया, एक्सीडेंट तो बाद आप गल करते हैं कि कोई भी बंदा इंजर नहीं होया। आप ये नहीं कहांगे कि कोई भी बंदा इंजर नहीं हो रहा, कंटिन्यू नहीं, इंजर नहीं हो रहा नहीं, इंजर नहीं होया। मतलब कि इसनूं आपां की बनावांगे, आपां
ईडी जिहड़ी आपां पहलां करिया ईडी क्लॉज आ जिहड़ा उस हिसाब नाल बनावांगे। देखो द एक्सीडेंट वॉज पास्ट दे विच है तां देयर दे नाल वॉज लग गया क्योंकि नोबडी की गल है, तो देयर वॉज उस तो बाद नोबडी इंजर द इंजर्ड, कोई भी इंजर नहीं होया। इत्थे कोई कंटिन्यू की गल नहीं, आप ये नहीं कह रहे कि कोई भी इंजर नहीं हो रहा है, नहीं कोई भी इंजर नहीं होया क्योंकि एक्सीडेंट है जिहड़ा हो चुकिया, वो लंघ चुकी क्रिया। अगे थर्ड आई कैन हीयर फुटस्टैप्स, देखो इत्थे हुण देखो समझने वाली गल है, आई कैन हीयर फुटस्टैप्स, ये कह रही है कि मैं फुटस्टैप्स सुन सकती हाँ, मतलब कि जिस टाइम ये गल कर रही है तो फुटस्टैप्स की आवाज़ है जी आ रही है कंटिन्यू, तो यह कंटिन्यू बनेगा। और दूसरा कैन है प्रेजेंट दे विच बनेगा, तो समबड़ी है समबड़ी दे नाल की आएगा इज, तो यह आएगा देयर इज, देयर दे नाल इज उस तो बाद समबड़ी, देयर इज समबड़ी कम दे नाल कमिंग, क्योंकि कंटिन्यू फॉर्म कंटिन्यू की सेंस आ रही है। फोर्थ देखो द ट्रेन वॉज फुल, जी ट्रेन है वो भरी हुई सी, अ लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल, हुण इत्थे भी देखो कंटिन्यू बन सकता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ट्रेन बहुत ज़्यादा भरी हुई सी और बहुत ज़्यादा जिहड़े लोग सी वो ट्रैवल कर रहे सी ट्रेन दे विच, तो बिल्कुल आराम नाल कंटिन्यू बना सकते हैं। तो देखो देयर क्योंकि अलॉट ऑफ पीपल है तो वर, देयर वर उस तो बाद अलॉट ऑफ पीपल उस तो बाद ट्रैवल दा ट्रैवलिंग। अगला पंजवां वी वर द ओनली गैस्ट्स, असी सिर्फ असी ही गैस्ट सीगे एट द होटल, मतलब होर कोई नहीं सी गेस्ट, सिर्फ असी सीगे। अगे की है नोबडी एल्स स्टे देयर, मतलब कि ये भी इत्थे देखो कंटिन्यू है कि होटल दे विच सिर्फ असी इकल्ले ही गैस्ट सीगे, होर कोई भी गैस्ट है जिहड़ा इत्थे नहीं रह रहा सी, तो बिल्कुल है देयर नोबडी है वॉज, देयर वॉज उस तो बाद नोबडी एल्स उस दा स्टे द स्टेइंग देयर, तो कंटिन्यू बन गया। अगला छेवां द पीस ऑफ पेपर वॉज ब्लैंक, जिहड़ा पेपर का एक टुकड़ा सीगा वो की सी ब्लैंक खाली सीगा, नथिंग राइट ऑन इट, इस दे उपर कुछ भी लिखा होया नहीं सी। हुण देखो इस नूं आपां कंटिन्यू नहीं बना सकते, आपां इस तरह नहीं कहांगे कि पेपर का टुकड़ा खाली सी और उस दे उपर कुछ भी नहीं लिखा जा रहा सी, ये थोड़ी है भी कोई लिखण की कोशिश कर रहा सी नहीं लिखा जा रहा सी, इस तरह गल नहीं कर रहे। उन्होंने पेपर का टुकड़ा मिलिया वो बिल्कुल ब्लैंक सी और उस तो बाद वो दस रहे ने हुण कि सानू पेपर का टुकड़ा मिलिया जिस दे उपर कुछ भी लिखा होया नहीं सीगा, तो मतलब यह बनेगा ईडी फॉर्म वाला जो फॉर्मूला अपना क्लॉज उस वाला। तो सब तो पहला देखो पेपर ऑफ वॉज पास्ट है तो देयर दे नाल वॉज वर, नथिंग है तो वॉज, नथिंग वॉज अपना देयर वॉज उस तो बाद नथिंग, देयर वॉज नथिंग राइट द रिटन ऑन इट, इस दे उपर कुछ भी लिखा होया नहीं सी। सतवां द कॉलेज ऑफर्स इंग्लिश कोर्सेज इन द इवनिंग, जिहड़ा अपना कॉलेज है उसने ऑफर किया इंग्लिश कोर्स मतलब इवनिंग दे विच क्लासेस, ऑफर्स प्रेजेंट दे विच है। अगे अ कोर्स बिगिन नैक्सट मंडे, जिहड़ा कोर्स है वो नैक्सट मंडे तो शुरू होने जा रहा है, इस नूं आपां कंटिन्यू बना सकते हैं कि अगले मंडे तो जिहड़ा कोर्स ने वो शुरू होने जा रहे हैं, तो प्रेजेंट दे विच है देयर दे नाल इज क्योंकि अ कोर्स है, देयर इज अ कोर्स बिगिन द बैगनिंग नैक्सट मंडे, क्योंकि आपां जिहड़ा ये फॉर्मूला है बैगनिंग नैक्सट मंडे ये आपां कीता जदों कोई आउण वाली चीज़ रहा है, मैं ये काम करन जा रहा हाँ, असी कोर्स शुरू करन जा रहे हाँ, तो उस जिहड़े फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इत्थे ING फॉर्म का जिहड़ा आपां यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ING क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह ये सी अपनी यूनिट 97। सिर्फ तुसी जिहड़ियां अपने पहले दो पार्ट करे ने जेकर उन्हां दे विच चंगी तरह तुहानूं समझ आ गया कि कित्थे आपां ING क्लॉज यूज़ करना है और कित्थे ED क्लॉज यूज़ करना है, तो आसानी दे नाल तुसी ये जिहड़ा अपना फोर्थ पार्ट है इसनूं भी बना सकते हो और थर्ड जिहड़ा आपां छड्डिया है उसनूं भी तुसी आसानी दे नाल बना सकते हो। ट्राई जरूर करना है, थर्ड नूं भी बना के देखो और उस तो बाद मैच करो तुहाडे आंसर अपनी जिहड़ी बुक है उस दे पिछे दिते हुए ने। सो इस वीडियो दे विच फिलहाल इन्ना ही, मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।